Hello students, this is Dr. Rajni Sharma from Government Girls College, Sriganganagar. I welcome all of you to Gyan Doot Part 2. Today we are going to start Part 3 of English Morphology and Sounds. My objective in this video is to teach you derivational morphology, inflectional morphology and sounds. Dear students, before I proceed, I want to highlight some of the main points we have read till now. Dear students, morphology is the structural, internal structure of the word. It has stem, root, and affixes in it. The criteria for identifying the parts of a word are their occurrence as independent words, their occurrence with other words, their clearly recognizable meaning, as well as the grammatical function of them. With grammatical function, it is meant how plural is followed by s in noun, how singular is followed by s in verbs, and in the case of possessions, apostrophe s is there. Likewise, the smallest structural part of a word is morpheme. Morphemes are of two types, free morpheme as well as bound morpheme. Complex word is a mixture of a union of free as well as bound morphemes, and compound one is having only free morphemes. Morphemes are having affixes in them, and they are affixes also, and these affixes are prefix as well as suffix. These affixes are of two parts. Prefix is in the beginning and suffix is in the end of the word. A stem with a single morpheme is called a root. In this way, there are different parts of a word. Now we are coming to the division of these affixes. They are of two types, grammatical affixes as well as lexical affixes. Grammatical are called inflectional affixes and the lexical are called derivational affixes. Grammatical affixes are attached to words as suffixes in accordance to the rules of the grammar. Dear students, they are attached to the words with following the according to the rules of grammar to relate them to other words in phrase, clause, or in sentence. It turns words to grammatical units. It is giving them a grammatical shape. For example, singular case s, plural case s, past tense ed or en, ed or n, perfect is also ed or n, and continuous is having ing form, ing form, and comparatives are having er or est as the suffix. That is the grammatical function of these suffixes. Inflectional morphology is discussed in terms of paradigms. What is a paradigm? How a verb is having different forms with different contexts. Paradigm of work break is breaks, breaking, broke, or broken. These are the different forms of the verb. In this way, the verb break, and that is the paradigm of the word break. Dear students, the very word inflection means change in the form of the word that shows its grammatical function. The remaining affixes that are lexical affixes. Lexical affixes are derived from the word lexis.
Lexis means vocabulary or word shape. These words are called lexical words because they help in formation of new words. Dear students, इनको लेक्सिकल वर्ड किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये नए वर्ड्स बनाते हैं. लेक्सिस का मीनिंग ही शब्दकोश है. ग्रामेटिकल वर्ड्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ग्रामेटिकल अफिक्सेस. ग्रामेटिकल वर्ड्स कैसे बनते हैं? उनके आगे ग्रामेटिकल एफिक्सेस लगते हैं एंड वो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी न्यू वर्ड्स. वर्ड शेप वही रहती है. ग्रामेटिकल एफिक्सेस लगाने के बाद ज़्यादातर ग्रामेटिकल सफिक्सेस ही होते हैं. इनको लगाने के बाद वर्ड जो है वह अपनी कैटेगरी नहीं बदलता. वर्ड की कैटेगरी यानी कि वर्ब से वो नाउन नहीं बन जाता, नाउन से एडजेक्टिव नहीं बन जाता, जो कि लेक्सिकल एफिक्सेस के साथ लेक्सिकल मॉर्फोलॉजी में होता है. जैसे कि वर्क है, एक शब्द बताती हूँ मैं आपको, वर्क. इसके आगे अगर ईडी लगा दें तब भी ये वर्ब ही रहेगा, वर्कड. आईएनजी लगा देंगे तब भी ये वर्ब ही रहेगा, वर्किंग, ये क्रिया ही रहेगी, है ना. तो ये सब जो है वो इनमें कोई चेंज नहीं होता. लेक्सिकल जो एफिक्सेस हैं वो नए वर्ड्स बनाते हैं. मान लीजिए, और कई बार लेक्सिकल में भी चेंज नहीं भी होता पर ज़्यादातर चेंज होता है. जैसे कि चाइल्ड है. चाइल्ड क्या है? एक नाउन है. चाइल्ड वर्ड क्या है? इट इज़ अ नाउन. और यदि हम इसके इश इश लगाते हैं जो कि एक लेक्सिकल मॉर्फीम है, एफिक्स है, इसके आगे अगर इश लगाते हैं तो चाइल्डिश एडजेक्टिव बन गया. और चाइल्डहुड, ये क्या बन गया? हुड लगाने से चाइल्डहुड, और ये है नाउन बन गया. ग्रामेटिकल एफिक्सेस चेंज द मीनिंग इन ए रेगुलर वे और लेक्सिकल एफिक्सेस आर नॉट चेंजिंग द मीनिंग. इस प्रकार से जैसे कि ये जो अदर वर्ड्स से भी बोरो किए जाते हैं और इनको हम डेरिवेशनल कहते हैं. डेरिवेशनल किससे बना है? डिराइव से. जो लेक्सिकल मॉर्फ है, लेक्सिकल एफिक्सेस हैं, ये लेक्सिकल मॉर्फोलॉजी लेक्सिस और इसको डेरिवेशनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अदर वर्ड्स. ये दूसरे वर्ड्स को डिराइव करने से बनता है. इन्फ्लेक्शनल एफिक्सेस है, दे डू नॉट चेंज द पार्ट ऑफ द स्पीच. जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया है, नाउन रिमेन्स नाउन ओनली. और डेरिवेशनल जो है वो चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में, इन्फ्लेक्शनल एफिक्सेस में क्या आता है? ऑल सफिक्सेस, उसमें सफिक्सेस आते हैं, जबकि डेरिवेशनल में सफिक्स भी होता है और प्रीफिक्स भी होता है. यह ऑर्डर क्या होता है? जैसे आई एम टेलिंग यू नाउ द ऑर्डर हाउ इन वन वर्ड इफ बोथ आर टू बी यूज्ड, डेरिवेशनल एज वेल एज ग्रामेटिकल, लेक्सिकल ग्रामेटिकल, डेरिवेशनल और ग्रामेटिकल दोनों ही अगर यूज करने हैं तो उनका हाउ द ऑर्डर विल बी. सबसे पहले आएगा स्टेम, जो बेस वर्ड है वो आएगा. इसके बाद डेरिवेशनल आएगा और लास्ट में ग्रामेटिकल आएगा. ग्रामेटिकल जो है दे आर द एंड पार्ट ऑफ एनी वर्ड, वो सब वर्ड के सबसे अंत में आते हैं और ये आउटर लेयर बनाते हैं वर्ड की. दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द वर्ड. जैसे कि एक शब्द है डी एस्टेबलाइज. डी एस्टेबलाइज में या डी इंडस्ट्रियलाइजिंग, डी जो है DED दैट इज़ अ प्रीफिक्स. और वो प्रीफिक्स क्या है? डेरिवेशनल प्रीफिक्स है. इंडस्ट्री रूट्स है. स्टेम जो बेसिक वर्ड जो मॉर्फीम है यह एक रूट मॉर्फीम है. और इसके बाद ईयर लगा है और लास्ट में जो इंग फॉर्म है दैट इज़ ग्रामेटिकल. और वो क्या है? एक ग्रामेटिकल एफिक्स है. ये है इन्फ्लेक्शनल एफिक्स है. सो इन दिस वे जो ऑर्डर में डेरिवेशनल एफिक्सेस पहले आएंगे और इन्फ्लेक्शनल एफिक्सेस बाद में आएंगे. अब हम आते हैं प्रीफिक्सेस पे. डेरिवेशनल प्रीफिक्सेस.
डेरिवेशनल प्रीफिक्सेस आर मॉडिफाइंग द मीनिंग, मैंने पहले भी बताया है मीनिंग चेंज हो जाता है कि जैसे कि समटाइम्स मीनिंग इज़ चेंज टू नेगेटिव, और इसमें आता है प्रीफिक्सेस कौन कौन से आते हैं डेरिवेशनल प्रीफिक्सेस, अन, अ, इन, डिस एंड नॉन, ये सब जो है वो डेरिवेशनल प्रीफिक्सेस में है। ये नेगेट करते हैं मीनिंग ऑफ द स्टेम। और इनसे अन से क्या शब्द बना है, अनकाइंड, अनपॉपुलर, अनवांटेड, और इनसे इनकम्प्लीट, डिसमिसल, अ से अमोरल, और नॉन से नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन, और ये सब। ये एलोमॉर्फ्स पे हम बाद में आएंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड डेरिवेशनल प्रीफिक्स, और ये सेकेंड टाइप के क्या होते हैं, दे रिवर्सल एंड डेप्रिवेशन। रिवर्सल और डेप्रिवेशन जो है, ये रिवर्सल मतलब रिवर्स ऑफ द एक्शन, और डेप्रिवेशन मीन्स डिप्राइविंग एनीथिंग, किसी चीज़ से वंचित कर देना, और इसके लिए प्रीफिक्स डी लगता है। जैसे कि शब्द है डी कंट्रोल, और इसमें डिस भी लगता है, अन भी लगता है रिवर्सल और डेप्रिवेशन के लिए। फॉर एग्जांपल डिसऑन, डिसकनेक्ट, एंड, अनपैक, ये सब जो है ये है रिवर्सल बताते हैं। इस प्रकार के जो प्रीफिक्सेस हैं दे टेल द रिवर्सल। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड टाइप। जो थर्ड इसका है डिस्पैरेजमेंट, जिसमें ये पेजोरेटिव अफिक्सेस भी कहे जाते हैं बिकॉज दे मेक द मीनिंग, वो मीनिंग को बैड बना देते हैं, रॉन्ग बना देते हैं। मूल जो वर्ड है उससे पूरा उल्टा, रॉन्ग या फॉल्स। फॉर एग्जांपल मोर न्यूट्रिशन, मिसबिहेव, सूडो क्रिटिक, सूडो राइटर, रूट सूडो मीन्स फॉल्स, और ये सभी जो है मीनिंग को बैड या रॉन्ग बना देते हैं। और नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग नंबर, डिग्री, रैंक, साइज एट्सेट्रा, जैसे कि बाय, मोनो, सेमी। बाय, मोनो और जो सेमी है ये जो नंबर बताते हैं। जैसे कि बाय का मतलब होता है टू, जैसे कि बाइसिकल हम चलाते हैं। मोनो मतलब ये केवल सोल के लिए आता है, जैसे मोनोपोली, मोनोगेमी। और सेमी होता है हाफ के लिए, सेमी सर्कल, आप लोगों ने बचपन में यू मस्ट हैव मेड सर्कल्स, सेमी सर्कल। और पोली का मतलब होता है मैनी, मतलब मैं पोलीगैमी। आँख, जो आँख है इसका होता है ऑफ हाईएस्ट रैंक, जैसे कि आर्क राइटर, आर्क एनिमी, आर्क एंजल, आर्क विलेन। और खो का मतलब होता है डूइंग थिंग टुगेदर, कोऑपरेट करके कोई चीज़ को करना, जैसे कि को ऑथर, दोनों राइटर्स अगर कोई पे काम कर रहे हैं तो यू विल राइट को ऑथर। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी कि टू एन एक्सेप्शनल डिग्री। माइक्रो और मिनी ये साइज के लिए यूज होते हैं, जैसे माइक्रो का होता है वेरी स्मॉल, और मिनी भी वही माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और इसी प्रकार से मिनी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनी बस जो स्कूल्स के लिए आती हैं, सुपर, सब और अंडर, दीज आर कमिंग फॉर द रैंक के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, सुपर और ये अंडर, ये सभी भी रैंक के लिए आते हैं। फिफ्थ जो कैटेगरी है डेरिवेशनल प्रीफिक्सेस की, इसमें किया जाता है एक्सप्रेस टाइम, ऑर्डर, लोकेशन, ऑल्टीट्यूड एंड ओरिएंटेशन। टाइम और ऑर्डर के लिए तो आता है एक्स, फोर, प्री, पास्ट, जैसे कि प्री वॉर, फोर रनर, एक्स एक्स टीचर, एक्स किसी जैसे कोई रिटायर्ड होता है उसके लिए अपने कहते हैं ना एक्स प्रिंसिपल, और इन सब के लिए एक्स का प्रयोग होता है। लोकेशन के लिए फोर, इंटर, सुपर और सब का और ट्रांस का होता है, फॉर एग्जांपल फोरग्राउंड। और इंटर का भी जैसे कि इंटर कॉलेजेस टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, इंटर कॉलेजेस टूर्नामेंट्स। सुपर ये भी सभी लोकेशन के लिए आता है, सुपरमार्केट जैसे हैं, और सब मार्केट, सबर्ब, बड़े बड़े शहरों में सबर्ब होते हैं, उप इलाके। ऑल्टीट्यूड, प्रो,
एंड, काउंटर, प्रो चेंज, जैसे प्रो चेंज, एंटी वॉर इसमें एग्जाम्पल आते हैं। ओरिएंटेशन के लिए काउंटर, एंटी एंड कॉन्ट्रा, काउंटर क्लॉकवाइज इसका एक एग्जाम्पल है। और कन्वर्शन प्रीफिक्स चेंज द कैटेगरी ऑफ द स्टेम, ये जो है स्टेम की कैटेगरी को भी चेंज कर देते हैं। तो दैट इज़ हाउ दे आर चेंजिंग। नाउ वी आर कमिंग टू द डेरिवेशनल सफिक्सेस। हम डेरिवेशनल सफिक्सेस पे आते हैं। डेरिवेशनल सफिक्सेस है, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरी टू विच वर्ड रिजल्टिंग फ्रॉम सफिक्सेशन बिलोंग्स। यह डिपेंड करता है कि वर्ड की कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये डेरिवेशनल सफिक्सेस हैं, दे आर समटाइम्स चेंजिंग, वो चेंज कर देती है पूरा ही किसी वर्ड को के कैटेगरी को। किसी वर्ड जो नाउन है उससे वर्ब भी हो सकता है, नाउन से, तो दैट इज़ चेंजिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे नेस है वो एडजेक्टिव के आगे हमेशा यूज होता है, तो दैट इज़ द नाउन सफिक्स है, दिस इज प्रोड्यूस। समटाइम्स नाउन सफिक्स लगकर नाउन बनता है। आई एम गिविंग यू वेरियस कैटेगरीज हाउ दे आर यूज्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरी इनका क्या है, एक तो नाउन सफिक्स है, और नाउन सफिक्स से क्या बनता है, नाउन ओनली। यह किसके आगे इसके आगे क्या लगता है, नाउन के आगे हुड, डम, इश और शिप लग गए। जैसे कि चाइल्डहुड, चाइल्ड भी एक नाउन है और उसके आगे हुड और लग गया, तो इट इज़ नॉट चेंजिंग द कैटेगरी, ये कैटेगरी चेंज नहीं हो रही। चाइल्डहुड, किंग के आगे किंगडम, लेकिन इश लगने से कैटेगरी चेंज हो रही है। चाइल्डिश, चाइल्ड के बाद इश लगने से चाइल्डिश, तो चाइल्ड इज़ ए कॉमन नाउन और उसके आगे इश लगने से ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। इसी प्रकार से शिप, स्कॉलर के आगे शिप लग गया, स्कॉलरशिप, दैट नाउन टू नाउन। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी, एडजेक्टिव सफिक्स। इसमें है फुल, इश और लेस लग के, चेयर के आगे फुल लगा देंगे, चेयरफुल बन गया। एंड इफ यू आर यूजिंग चेयरलेस और द सेम इज विद इश ऑल्सो, सो दे आर एडजेक्टिव नाउन एडजेक्टिव सफिक्स। नाउन एडजेक्टिव सफिक्स को ना सफिक्सेस दैट प्रोड्यूस वर्ड्स दैट कैन बी आइदर यूज्ड एज नाउन्स और एडजेक्टिव्स। इसमें ईज, ईयन और ईस्ट, ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों प्रकार से यूज हो सकते हैं। जैसे कि चाइनीज़, चाइनीज़ एक देयर वॉज ए चाइनीज़, चाइनीज़ एक इट कैन बी ए नाउन, और चाइनीज़ यदि प्रोडक्शन है कोई तो इट कैन बी एज एडजेक्टिव ऑल्सो। इंडियन, इंडियन कैन बी इंडियन मार्केट, देन इट इज़ ही इज़ एन इंडियन। यहाँ एक नाउन के प्रयोग हुआ है, ही इज़ एन इंडियन। व इंडियन यानी कि इंडियन का मतलब है इंडियन नेशनैलिटी, बट ही इज़ शी इज़ एन इंडियन वुमन, तो यहाँ पे इंडियन वुमन में जो फर्स्ट इंडियन है वुमन तो कॉमन नाउन हुआ और इंडियन इज़ एन एडजेक्टिव। वर्ब सफिक्सेस हैं दैट प्रोड्यूस वर्ब, जैसे कि फाई, इज़ और एन। ब्रेजन, नेशनलाइज, ब्यूटीफाई, ब्यूटी के आगे फाई लगा दिया, ब्यूटीफाई, तो ये वर्ब बन गए। एडवर्ब सफिक्सेस वार्ड, वाइजरली, साउथवर्ड, नॉर्थवर्ड टू द डायरेक्शन। एडवर्ब इज ऑफ 3 टाइप्स, ऑफ टाइम, ऑफ प्लेस, ऑफ मैनर। मैनर तो ली से चलेगा, किस प्रकार से, जैसे कि कामली, शार्पली, ये प्रकार होता है। और वाइज और वार्ड, वार्ड इज शोइंग द लोकेशन, साउथवर्ड, नॉर्थवर्ड, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिक्स ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द स्टेम टू विच सफिक्स इज एडिड। नाउन सफिक्सेस हैं, दे फॉर्म नाउन फ्रॉम नाउन स्टेम। डिनोमिनल नाउन सफिक्सेस होते हैं बैगेज, स्लेवरी, बैग से बैगेज और स्लेव से स्लेवरी। फ्रॉम एडजेक्टिव स्टेम फ्रीडम, डार्कनेस, लेंथ। फ्रॉम वर्ब स्टेम ब्रेकेज, ट्रेनिंग, ब्रेक से ब्रेकेज। तो स्टेम क्या था, मूल वर्ड जो स्टेम यानी कि जो प्री मॉर्फिम था वो ब्रेक था, और ब्रेक से ब्रेकेज बन गया, और ट्रेन से ट्रेनी बन गया, ट्रेनिंग से ट्रेनी। और ट्रेन एक वर्ब है, ट्रेन करना, प्रशिक्षण देना, फ्रॉम दैट इट इज़ बिकमिंग ट्रेनिंग। और एडजेक्टिव जो है फ्री एडजेक्टिव है, फ्रॉम फ्री एडजेक्टिव नाउन जो सफिक्स बना रहे हैं वो फ्री से फ्रीडम,
डार्क से डार्कनेस, नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए हैं। नाउन टू एडजेक्टिव है, जैसे कल्चर से, कल्चर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कल्चरल एडजेक्टिव बन गया। चाइल्ड नाउन है, चाइल्डिश एडजेक्टिव बन गया। नाउन एडजेक्टिव सफिशिएंस, नाउन से एडजेक्टिव बना। ग्रीन नाउन है, ग्रीनिश। डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट, डिपेंड जो है, डिपेंडेंस नाउन है। डिपेंडेंस से, डिपेंड जो है वर्ब है, डिपेंड से डिपेंडेंस बना है, जो कि दैट इज़ अ नाउन। एंड फ्रॉम डिपेंडेंस आप डिपेंडेंट भी बना सकते हैं, दैट इज़ एन एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, दो जो मॉर्फिम्स को मिला देते हैं, दैट बिकम्स कंपाउंडिंग। हमने अभी ये कंपाउंडिंग ही देखी थी व्हेन वी वर यूजिंग, ये कंपाउंडिंग अफिक्स और कॉमन वर्ब की थी, मॉर्फिम की थी। नाउ वी आर कमिंग टू व्हेन टू मॉर्फिम्स आर यूज्ड, जब दो फ्री मॉर्फिम्स को आप यूज करते हैं, हाउ दे आर गिविंग बर्थ टू ए न्यू वर्ड, किस प्रकार से एक नया वर्ड एक्सिस्टेंस में आ जाता है, वी शैल लर्न नाउ। हम पहले आते हैं नाउन कंपाउंड्स पे। दो नाउन्स मिलके एक नया वर्ड बन गया है, एंड दैट इज गर्लफ्रेंड। गर्ल इज अ नाउन, फ्रेंड इज अ नाउन, नया वर्ड है, कंपाउंडिंग वर्ड क्या बना, गर्लफ्रेंड। आइस इज नाउन, क्रीम इज नाउन, आइसक्रीम। न ये नाउन प्लस नाउन थे। एडजेक्टिव प्लस नाउन से क्या बना है, डार्क रूम, ब्लैक बोर्ड। और वर्ब प्लस नाउन, ब्रेकफास्ट। ब्रेक क्या था, वर्ब था, फास्ट जो आप उपवास रखते हैं, दैट इज़ अ नाउन, और मिलके क्या बन गया, ब्रेकफास्ट। पिक पॉकेट, पिक इज़ अ वर्ब, और पिक के आगे नाउन, पॉकेट लगने से पिक पॉकेट। नाउ वी आर कमिंग टू एडजेक्टिव कंपाउंड्स। इनसे एडजेक्टिव बन रहा है। नाउन को हम कैसे एडजेक्टिव बनाएंगे, एक एडजेक्टिव आगे जोड़ के, जैसे कि वाटर है, वाटर इज नाउन, और इसके आगे प्रूफ लगा दिया, वाटर प्रूफ। टैक्स के आगे फ्री लगा दिया, टैक्स फ्री, और एडजेक्टिव बन गया। नाउ एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, टू एडजेक्टिव्स आर गिविंग बर्थ टू ए न्यू एडजेक्टिव। आई सी कोल्ड, डेफ, म्यूट। Verb plus adjective, one verb when it is followed by an adjective, and when both are having a compounding, then a new adjective word is coming into existence. For example, freezing cold, freezing cold. Verb compounds, noun plus verb. Here noun is brain and verb is wash, brain wash. Brain wash, किसी का brain को wash कर देना, that is verb. Bottle feed, bottle is a noun followed by verb, a new compounding is happening, bottle feed. Adjective plus adjective, dry, clean, fine tune. Verb plus verb, sleep, walk, writer, producer. Dear students, these were verb compounds. Now syntactic approach we have been following, word type involving adverbs and participles. इनमें एडवर्ब्स और पार्टिसिपल्स मिलके भी कंपाउंडिंग होती है। जैसे कि पार्टिसिपल इन है, उसके आगे हम वर्ब लगा दें तो इनकम, इन प्लस कम, इनकम। आउट प्लस कास्ट, आउटकास्ट। वर्ब प्लस पार्टिसिपल, ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट। फॉल आउट, फॉल आउट। पार्टिसिपल प्लस नाउन, पहले पार्टिसिपल है आफ्टर, और नाउन है थॉट, आफ्टर थॉट। ओवर पार्टिसिपल है, डोज लगने से नया वर्ड बन गया, कंपाउंडिंग वर्ड क्या है, ओवरडोज। सो दीज आर द कंपाउंडिंग with the help of adverbs plus participle. Dear students, now we are coming to the different types of compounding. Compounding may be of two types, endocentric and exocentric. What is endocentric? Endocentric compounding वो होती है जिसमें कि second word is carrying the meaning. जैसे कि टेक्स्ट बुक, सेकेंड वर्ड टेक्स्ट बुक में क्या है, बुक, और टेक्स्ट बुक कैसी, जिसमें टेक्स्ट हो। न्यूज़पेपर, पेपर कैसा, जिसमें कि न्यूज़ है, न्यूज़पेपर। हमें पता चलता है कि ये क्या है, दैट इज़ सेकेंड वर्ड इज कैरिंग द मीनिंग।
हैंड बैग, बैग किस प्रकार का, विच कैन बी कैरिड बाय हैंड, हैंड बैग। बुक स्टोर, क्लासरूम, ब्यूटी क्वीन, डाइनिंग रूम, दिस आर एंडोसेंट्रिक। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वेयर एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स हैं। एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स वो है वेयर सेकंड वर्ड इज़ नॉट कैरिंग द मीनिंग, जिसमें आप सेकंड वर्ड को देख के ये पता नहीं लगा सकते कि हेड वर्ड क्या है और क्या है। दो शब्द अलग अलग मिलके कुछ नया ही एक्सिस्टेंस में आ गया, जैसे कि रीड प्लस हेड मिलके रीड हेड बन गया। स्केयर प्लस क्रो मिलके स्केयर क्रो। स्केयर क्रोज आर वो कौवे जो कि खेत में लगाए जाते हैं टू स्केयर द वर्ड्स। स्केयर क्रो, लेकिन ये क्रो नहीं है एक तरह का, दैट इज़ अ पपेट विच इज़ टू फ्राइटन द बर्ड्स। सो स्केयर क्रो इज़ अ न्यू वर्ड। इसी प्रकार से ब्लॉक हेड, एग हेड, हेड हंटर, हाई ब्रू, 4 फुट और रेड टेप, ये सब नए वर्ड्स हैं। 2 वर्ड्स आर मेड, रेड और टेप मिलके रेड टेपिज्म जो जिसे हम कहते हैं, रेड इसको किसी प्रकार का टेप नहीं है लेकिन रेड टेप। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिंटैक्टिक अप्रोच तक सेमेंटिक अप्रोच पे आते हैं। सेमेंटिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ मीन्स मीनिंग। द मीनिंग ऑफ कंपाउंड्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेमेंटिक रिलेशंस। Believes that compounds are generated freely from sentential structure and therefore do not need to be listed in dictionary. ये बिलीव करता है कि कंपाउंड सेमेंटिक अप्रोच क्या बताती है, सिंटैक्टिक सेमेंटिक अप्रोच ये बताती है कि दे डू नॉट नीड टू बी लिस्टेड इन द डिक्शनरी, क्योंकि दे आर जनरेटेड फ्रॉम सेंटेंशियल स्ट्रक्चर। जैसे डिक्शनरी में सेंटेंस नहीं आते, ओनली वर्ड्स आर देयर, सो दे डू नॉट नीड टू बी लिस्टेड इन द डिक्शनरी एज they are just a kind of creation. अब how to write compounds, what is the right way of writing compounds? There are 3 ways, 3 प्रकार के तरीके हैं जिनसे कि we have to write compounds. First है दोनों को एक सिंगल वर्ड के रूप में लिखा जाए। नॉन, इनको सॉलिड कंपाउंड भी कहते हैं, जैसे कि डार्क रूम, डार्क और रूम मिलके डार्क रूम बन गया और ये सिंगल वर्ड के रूप में है। गर्ल और फ्रेंड मिलके गर्ल फ्रेंड, टॉल बॉय, ये सब सिंगल, इनमें कोई 2 अक्षरों के बीच में देयर इज़ नो एनी स्पेस। दूसरे हैं विद हाइफन्स, बीच में लाइन जो होती है उसको लिख के बनते हैं, इनको हाइफनेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये जैसे स्लीप वॉक, स्लीप वॉक मिलके स्लीप वॉक बन गया। फ्रीजिंग काउल्ड, फ्रीजिंग कैसी ठंड, जमा देने वाली, फ्रीजिंग और काउल्ड मिलके फ्रीजिंग काउल्ड मिल गया। Some are written as open compounds, ओपन कंपाउंड्स के रूप में यूज किए जाते हैं और ये हैं, इनको ओपन कंपाउंड्स कहते हैं, यानी कि देयर इज स्पेस। जैसे कि हमने पहला तरीका था सॉलिड कंपाउंड्स, उसमें देयर वाज नो स्पेस बिटवीन 2, यहाँ पर 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस है। हालांकि स्पेस है फिर भी दे आर यूज्ड एज सिंगल वर्ड, जैसे कि क्लीनिंग वूमन, वॉकिंग स्टिक एंड हॉट डॉग। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से देयर आर 3 ways टू यूज़ कंपाउंड्स। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ हाउ सम कंपाउंड्स आर डेरिवेशनल कंपाउंड। जो ये मॉर्फोलॉजी है उसमें कुछ सफिक्सेस हैं, वो कुछ किसी विशेष शब्दों के साथ ही आते हैं, जैसे कि नेस है वो एक एडजेक्टिव स्टेम है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है, जैसे कि काइंडनेस वगैरह। इसी प्रकार से प्रीफिक्स जो डी है वो वर्ब स्टेम के साथ यूज होता है, हमने पहले ही पढ़ा भी है। सफिक्स आई जेड ही है, वह केवल एडजेक्टिव के साथ लगता है, जैसे कि इसका मीनिंग होता है टू मेक, जैसे कि मॉडर्नाइज, ह्यूमनाइज। और इसी प्रकार से एशन, ATION, एशन है, वह वर्ब के बाद यूज होता है, जैसे एग्जामिन के बाद एशन बन गया तो वर्ब बन गया, वर्ब से नाउन बन गया एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से ली जो है वह एडजेक्टिव के बाद ही एडजेक्टिव बनाता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाता है, जैसे नाउन से एडवर्ब, जैसे होम से होमली एडजेक्टिव बन गया है, यानी कि नाउन से एडजेक्टिव बन गया है। और काम से कामली, काम एडजेक्टिव है उससे कामली एडवर्ब बन गया है। और पीस नाउन है उससे पीसफुली। इस प्रकार से हम डिफरेंट